Assalamualaikum dear students. This is Miss Uruj Javed from the Smart School Sir Syed Ahmed Khan campuses and Gulistani Johar campus. How are you all? Hope you all are fine. In this video, I will explain you about history of biology and contribution of Muslim biologists. And the resource which I am using here is your textbook of biology. In previous class, I have told you about the relationship of biology with other sciences. I have told you that the biology is linked with the other branches of sciences like biochemistry. With chemistry, it becomes biochemistry, biophysics, biometry, biosociology, and behavioral biology. And in the previous class, I have told you about the biological method as well. In order to solve a specific biological problem, a biological method is adopted. It comprises of 6 steps: observation, hypothesis, deduction, experiment, result, law or theory. Now let's come to the today's topic, which is history of biology. The history of biology goes back to the ancient and prehistoric time. Very briefly, perhaps the first noticeable development in our knowledge of biology occurred during the Greek period. Individuals like Aristotle is remembered even today. He wrote a book, Historia Animalia. हिस्ट्री में की अगर बात की जाए तो हिस्ट्री में एक इंडिविजुअल की बात की जा रही है विच इज़ एरिस्टोटल. हियर इज़ द पिक्चर ऑफ एरिस्टोटल. इसको आज भी याद किया जाता है इन द हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी. इन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है हिस्टोरिया एनिमेलिया, बेसिकली हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स पे. कैरोलस लीनियस, founder of biological classification, classified animals into 2 units, that is genus and species. कैरोलस लीनियस को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का फाउंडर कहा जाता है. क्योंकि इन्होंने क्या किया था, एनिमल्स को 2 यूनिट्स में डिवाइड कर दिया था, दैट इज़ जीनस एंड स्पीशीज़. आपकी बायो की बुक में 3rd चैप्टर जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पूरा इसी बेस पर है, जिसमें हम इसको और डिटेल में जो है वो पढ़ेंगे. Frestus, he discovered sex in plants, which plant is male and which part of plant is male and which part of plant is female, and described about 500 plants. Therefore known as founder of botany. मैंने आपको बताया था बॉटनी जो है वो स्टडी ऑफ प्लांट्स कहलाती है. अब चूँकि फ्रस्टस ने तकरीबन 500 प्लांट को डिस्क्राइब किया था, दैट्स वाई इनको फाउंडर ऑफ बॉटनी भी कहा जाता है. Here is the picture of Frestus. Now come to the contribution of Muslim biologist. Jabir bin Hayyan, 722 to 817 AD. He wrote books named Al-Nabatat and Al-Haywan on plants and animals respectively. जाबिर बिन हयान ने 2 बुक्स लिखी थी जिनका नाम है अल-नबातात एंड अल-हैवान. अल-नबातात जो है वो प्लांट्स पे थी और अल-हैवान जो है वो एनिमल्स पे थी. अब्दुल मलिक असमई, 791 AD. He wrote books Al-Khil, Al-Ibil, Al-Wahush, Ash-Shah and Khalaqul Insan, describing structure and function of body parts of horses, camels, sheep, wild animals and human beings. Abdul Malik Asmai, 791 AD. He wrote books Al-Khil, Al-Ibil, Al-Wahush, Ash-Shah and Khalaqul Insan, describing structure and function of body parts of horses, camels, sheep, wild animals and human beings. Khalaqul Insan was popular among the Western experts in zoology. He was regarded a specialist of his time.
अब्दुल मलिक असमई ने जो बुक्स लिखी थी उनका नेम है अल-खील, अल-इबील, अल-वहुश, अश-शा एंड खलकुल इंसान। बेसिकली इस बुक्स में इन्होंने क्या चीज़ बताई थी, इन्होंने डिस्क्राइब किया था स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स ऑफ हॉर्सेस, कैमल, शीप्स, वाइल्ड एनिमल और ह्यूमन बीइंग। इन बुक्स में से इनकी जो बुक है खलकुल इंसान, वो वेस्टर्न एक्सपर्ट्स में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी फॉर जोलॉजी। और इसके अलावा ये अपने टाइम के बहुत बड़े स्पेशलिस्ट भी थे। Al-Farabi and Abdul Qasim al-Zahrawi both were the renowned Hakim and surgeon of the Islamic world. अल-फराबी और इनके साथ एक और हैं अबुल कासिम अल-ज़हरवी, दोनों जो हैं अपने टाइम के बहुत ज़्यादा जाने माने हकीम और सर्जन थे इस्लामिक वर्ल्ड के। अल-फराबी इज़ द ऑथर ऑफ टू वेरी वेल नोन बुक्स, दैट इज़ किताबुल नबातात एंड किताबुल हैवानात, and Zahrawi was famous for the removal of urinary bladder stone. Here is the picture of Al-Farabi। के साथ एक और थे जिनका नाम है अब्दुल कासिम ज़हरवी। ठीक है, अब अल-फराबी ने जो बुक लिखी थी उसका नाम है किताबुल नबातात एंड के बाद किताबुल हैवानात, और जबकि ज़हरवी जो है वो अपने टाइम पे यूरिनरी ब्लैडर स्टोन को रिमूव करने के लिए बहुत फेमस थे। इब्न अल-हैतम, he wrote books like Kitabul Manazir and Mizanul Hikmah. He explained the phenomena of vision and corrected the Greek conception about vision. इब्न अल-हैतम ने जो किताब लिखी है उसका नाम है किताबुल मनासिर एंड मिज़ानुल हिकमा। इसके अलावा इन्होंने जो है वो उस ग्रीक ने एक फिनोमेना बनाया हुआ था विजन का, ठीक है, वो गलत था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस कॉन्सेप्ट को करेक्ट किया, यानी ग्रीक का जो कॉन्सेप्ट था उसको करेक्ट किया और एक्सप्लेन किया किसको, फिनोमेना को, किसके फिनोमेना को, विजन के फिनोमेना को। अली बिन रब्बान तुबरी, he wrote book Firdausul Hikmah having many illustration and detailed articles on philosophy, zoology, psychology and astronomy। इन्होंने बुक लिखी जिनका नाम है फिरदौसुल हिकमा, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा इलस्ट्रेशंस और डिटेल्स आर्टिकल्स मौजूद हैं किन सब्जेक्ट्स पे, फ़िलासफ़ी पे, जोलॉजी पे, साइकोलॉजी पे और एस्ट्रोनॉमी पे। Abu Usman Umar al-Jahiz, he wrote books Al-Hayawan which describe characteristics of 350 species of animals, especially about life of ants। इन्होंने बुक लिखी जिसका नाम था अल-हैवान, जिसमें इन्होंने तकरीबन 350 स्पीशीज़ जो हैं वो एनिमल्स के डिस्क्राइब करे, और बेसिकली इन्होंने आंट्स की लाइफ पे बहुत डिटेल में जो है वो चीज़ें डिस्क्राइब करी थी इस बुक के अंदर। Abu Ali Sina, 980 AD, he wrote books Al-Qanun and Fil Tib al-Shifa about plants, animals and non-living things। He is considered as one of the founder of medicine, acknowledged by the greatest expert of his time in medicine in East and West। इन्होंने जो बुक लिखी है उनके नाम थे अल कानून एंड फिल तिब अल शिफा, जो कि प्लांट, एनिमल और नॉन लिविंग थिंग्स पे थी। ये अपने टाइम के फाउंडर ऑफ मेडिसिन भी थे, जिनको एक्नॉलेज किया था ग्रेट एक्सपर्ट ऑफ मेडिसिन अपने वक्तों के, यानी ये जिस वक्त की बात हो रही है उस टाइम के जो ग्रेटेस्ट एक्सपर्ट थे मेडिसिन के, उन्होंने इनको एक्नॉलेज भी किया था ईस्ट एंड वेस्ट दोनों में। ज़ियाउद्दीन इब्ने बैतर, 13th century AD, he specialized in the study of plants। He traveled to several countries, observed and studied many species of plants। इनकी जो स्पेशलाइजेशन थी वो बेसिकली प्लांट्स की स्टडी में थी। इन्होंने बहुत सारी कंट्रीज़ को ट्रैवल किया, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन करी और बहुत सारी प्लांट की स्पीशीज़ को स्टडी भी किया। इब्न अल नफीस, 13th century AD, he described the process of blood circulation in human body। इन्होंने बेसिकली ये चीज़ डिस्क्राइब की थी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो किस तरह से हो रही है, इसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो इब्न अल नफीस ने दी थी। कमालुद्दीन अल दमीरी, 14th century AD, he compiled a book
Hayat al-Haywan deals with the characteristics of 1,000 kinds of animal. इन्होंने बुक कंपाइल की थी, मतलब इन्होंने बहुत सारी जगह से इंफॉर्मेशन गैदर करके एक बुक कंपाइल की थी जिसका नाम था हयात अल-हैवान. इस बुक के अंदर बेसिकली इन्होंने 1,000 kinds ऑफ एनिमल की कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है वो डिस्कस किया है. कितने काइंड्स की? 1,000 kinds की. Ali bin Isa. He was a well-known eye specialist of his time and worked on structure, function and disease of the eye. ये अपने टाइम के बहुत बड़े आई स्पेशलिस्ट थे और इसके अलावा इन्होंने स्ट्रक्चर, फंक्शन और डिजीज़ ऑफ आई पे भी बहुत काम किया. ही रोट 3 volumes ऑन दिस सब्जेक्ट इन विच ही डिस्क्राइब 130 डिजीज़ ऑफ आई. इन्होंने इसी सब्जेक्ट पे यानी आई के ऊपर ही जो है वो 3 volumes लिखे जिसमें इन्होंने तकरीबन 130 डिजीज़ ऑफ आई यानी आई की तकरीबन 130 डिजीज़ को जो है वो डिस्क्राइब किया. अबुल कासिम मजरीती. ही इज़ स्पेशली नोन इन यूरोप फॉर हिज बुक ऑन एनिमल स्पीशीज़. बेसिकली ये किस लिए बहुत ज़्यादा जो है मशहूर थे, इनकी एक बुक थी एनिमल स्पीशीज़ पे जो कि यूरोप में बहुत मकबूल हुई थी, इसके लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते थे. एनिमल्स के ऊपर इन्होंने जो है वो बुक लिखी थी. These are the some Muslim biologists that contribute in the field of biology and to make many discoveries and many things which we are studying right now. I hope you all understand the contribution of these Muslim biologists. There are 1, 2, 3, 12 Muslim biologist contribution. In your exams only 5 will come. Okay, so I hope this topic is clear to all of you. If you have any question, any query, you can ask me in the comment section. I will explain it to you again. Till then, stay home, stay safe. Allah Hafiz.